Recently been awarded as NAC accredited institution. That is the one more feather in the crown of this institution. Actually, you have chosen the nice speakers. The eminent speakers are Rushikesh Maitre and Yashasri Joshi. From our university side, there is a observer, Dr. Patil sir, Vinod Patil sir. He is our Senate member and my colleague in the university. Actually, the participants, mostly teachers, PhD scholars, PGs, students, practitioners, and followers of Ayurveda from Maharashtra, not only from Maharashtra, other states of India and abroad. Actually, if you want to be a good practitioner, if you want to be a follower, or if you want to perform the research in Ayurveda, then you should inculcate the knowledge from the Samhitas, basic principles from the Samhitas, and that research will give the benefits to the society as well as the to Ayurvedic science. Ayurveda science is the very ancient science and old science, but still it is remaining in the society and in the world. Now it has been recognized all over the world. It is the basic thing is that the basic principles mentioned in the Samhitas, all the treatments of the diseases or prevention of the diseases and promotion of the health, it is entirely based on the principles of Ayurveda in Samhitas. So once again, I would like to congratulate this institution, and also for forthcoming webinars which are to be conducted from 28th of this month and onwards. And such type of webinars are very helpful and motivational for the students and teachers. And whenever you feel you get the leisure time, you go through the Samhitas, repeatedly you practice the Samhitas as Madam told, the HOD Madam told that repeatedly abhyasam means repeatedly pathan of Samhitas is very required and very important. So I would like to once again congratulate organizers and for calling me to this webinar. Thank you very much, and I extend my best wishes to this webinar. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Thank you so much. I request Dr. Vinod Patil, sir, please say few words and give us guidance. Dr. Vinod Patil, sir. Introduce next speaker, a famous personality in the field of Ayurveda, Dr. Yashasri Joshi ma'am. Hello ma'am. Hello. It is my great pleasure to introduce ma'am on the occasion of National Webinar on Samhita Avalokan. Ma'am is working in the field of Ayurveda since 30 years. She has completed BMS from Pune University and MD in Kaya Chikitsa from Pune University. She is also MA in Sanskrit from Tilak Maharashtra Vidyapith in the subject Vedanta. Also MPhil in Sanskrit. She had PhD in basic principles. Ma'am is MS in psychotherapy and counseling. Experience, ma'am was attached to the College of Ayurveda, Bharati Vidyapith University, Pune for last 30 years. She worked as a tip and professor in Samhita department of this college. She was
invited as a resource person and have also presented various papers in various national and international Ayurvedic conferences. Ma'am written nearly 25 articles in various renowned journals. Ma'am guided almost 30 MD and 4 PhD scholars. Her 5 books are published up till now. She is Ayurvedic practitioner also for last 15 years. Now she is engaged in Ayurvedic practice as a counselor. She is consultant at Punarvasu Chikitsalaya, Rajendra Nagar, Pune, with special OPD for Manasopchar and counseling. I requested Dr. Joshi ma'am to continue with the second session. हेलो। Ma'am, please share your PPT. हाँ, शेयर की। बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद अभी लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। आदिदेव धन्वंतरी और गुरुवर्य कोलटकर सर को वंदन करके हम आज चरक का विषय शुरू करेंगे। इसके पहले हमने बहुत ही आवेशपूर्ण अष्टांग हृदय का एक लेक्चर सुना। इसके बिल्कुल ही अलग तरीके से ये शांतिमय चरक का लेक्चर है। चरक संहिता की पढ़ाई कैसे करनी है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चरक संहिता, इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। चरक संहिता में 3 प्रकार के शिष्य दिए हैं। बुद्धि के स्तर पर शिष्यों की 3 प्रकार की गणना की है, त्रिविध बुद्धि शिष्य इस प्रकार से। वैसे आजकल जो टीचर है उनके सामने 3 प्रकार के शिष्य आते हैं, या जो स्टूडेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से 3 प्रकार में हम कर सकते हैं। एक प्रकार के स्टूडेंट है जो आगे चल के आयुर्वेद के फील्ड में ही रहेंगे, या तो प्रैक्टिस करेंगे आयुर्वेद की, या एकेडमिक में जाएंगे, या रिसर्च करेंगे, या औषधि निर्माण क्षेत्र में जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में जाए लेकिन आयुर्वेद से उनका संबंध जुड़ा रहेगा। दूसरा एक क्लास होता है स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिस ही करते हैं और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से करते हैं, एलोपैथी के साथ करते हैं, या नेचुरोपैथी, या योग प्लस आयुर्वेद, या एरोमा थेरेपी प्लस आयुर्वेद, ऐसे अलग अलग प्रकार से किसी ना किसी अन्य शास्त्र से संबंध रख के फिर प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा एक क्लास है जो पूर्णतः आयुर्वेद को छोड़ देता है, जो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है, या फिर एक डिग्री लेके BMS की एक डिग्री लेके पूर्ण रूप से दूसरे ही किसी फील्ड को सिलेक्ट करता है। किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो उसके लिए चरक संहिता पढ़ना अनिवार्य होता है। पहला जो क्लास है स्टूडेंट जो आयुर्वेद में ही रहने वाले हैं उनके लिए तो चरक संहिता का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि किसी भी फील्ड में, प्रैक्टिस में, एकेडमिक में, रिसर्च में, औषधि निर्माण में, किसी में भी अगर आप एक्सेल होना चाहते हो तो अगर चरक की पढ़ाई अच्छी तरह से हुई है, समझ अच्छी बनी है, तभी आप आगे जा सकते हो। जो मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए भी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए चरक संहिता की आवश्यकता है। और जो तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एग्जाम में पास होना है, जल्दी जल्दी डिग्री लेनी है, इसलिए उन्हें भी चरक संहिता की एग्जाम के हद तक तो समझ होनी ही चाहिए। तो किसी भी प्रकार के शिष्य हो के लिए चरक संहिता को पढ़ना और चरक संहिता को समझ लेना, ये ऐसा पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है एक कि जो पूर्ण रूप से पढ़ना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो पूर्ण रूप से पढ़ना ये मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ते पढ़ते उसके अगर हमने नोट्स बनवा लिए अलग अलग फॉर्म में, तभी वो किसी ना किसी प्रकार से हमें फायदेमंद होते हैं, एग्जाम में भी होते हैं, और आगे चल के हमें जो गहराई का ज्ञान चाहिए आयुर्वेद का, उसके लिए भी इस प्रकार के नोट्स हमें फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी करनी है उसके लिए CCIM का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि चरक पूर्वार्ध में सूत्र स्थान के लिए सबसे अधिक मार्क्स है और चरक उत्तरार्ध में चिकित्सा स्थान के लिए सबसे अधिक मार्क्स है। तो एग्जाम की पढ़ाई किसी भी विषय के लिए जो करनी है वो पेपर कैसे आते हैं वो देख के उसके हिसाब से नोट्स बनवा के ही किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 4 नंबर की स्लाइड। तो चरक संहिता का जो अभ्यास करना है
अब ये तीनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स है और कुछ नए टीचर्स है, उन सबके लिए आगे के सारा ये व्याख्यान होगा। जिसे जो चाहिए वो अपने अपने हिसाब से इस व्याख्यान से ग्रहण करे। सबके लिए सब एप्लीकेबल होगा ऐसे नहीं है, आप अपना अपना चूज कर सकते हो। चरक संहिता का अच्छी तरह से अध्ययन करने का एक फायदा ये है कि चरक का अभ्यास करते करते उसी वर्ष के जो अन्य विषय है हमारे परीक्षा के, उसका भी कुछ ना कुछ पार्शल अभ्यास हो जाता है। जैसे कि चरक पूर्वार्ध में सूत्र निदान विमान शारीर इंद्रिय स्थान आते हैं। इनकी पढ़ाई करते समय द्रव्य गुण का पहला पेपर, रोग निदान विकृति विज्ञान का पहला पेपर और भैषज्य कल्पना का आंशिक भाग, इनकी पढ़ाई हो ही जाती है। चरक उत्तरार्ध में चिकित्सा कल्प सिद्धि ये विषय आते हैं। इनकी पढ़ाई करते समय काय चिकित्सा पंचकर्म, अगत तंत्र का आंशिक भाग और स्त्री रोग का बेसिक भाग, इनकी पढ़ाई भी इनके साथ ही हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। पीजी जो विषय है संहिता सिद्धांत का, उनके लिए तो पूरा एक पेपर ही चरक संहिता विद चक्रपाणी टीका ऐसा पहला पेपर ही है, तो उनको तो अनिवार्य ही है चरक संहिता का अध्ययन करना। साथ ही पेपर 2, 3, 4 इनमें भी एक पेपर सुश्रुत वाग्भट का है और बाकी के पेपर्स में भी चरक संहिता से रिलेटेड ऐसे कुछ ना कुछ तो विषय आ ही जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी जरूरी ही है चरक संहिता की पढ़ाई करना। नेक्स्ट। तो अभी हमने अष्टांग हृदय का एक लेक्चर सुना। जो फर्स्ट ईयर पास होके आए हुए स्टूडेंट है, जो अब चरक संहिता पहली बार ही पढ़ने वाले हैं, उन्हें एक संहिता का उनका परिचय हो चुका है अष्टांग हृदय का, लेकिन अष्टांग हृदय की पढ़ाई और चरक संहिता की पढ़ाई इसमें काफी अंतर है। अष्टांग हृदय की जो पढ़ाई की हमने फर्स्ट ईयर में, उसमें सिर्फ एक ही स्थान की पढ़ाई की है, सूत्र स्थान की, जिसमें 30 चैप्टर्स थे। तो चरक संहिता में उसकी तुलना में एक वर्ष में 3 से 5 स्थान है और उसमें करीबन 50-60 चैप्टर्स आ जाते हैं। अष्टांग हृदय की जो रचना थी वो बहुत ही सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन है, जिसके बारे में अभी हम आपने बहुत कुछ सुना। उसके विरुद्ध बिल्कुल अलग तरीके से चरक संहिता की रचना की गई है। बहुत सारे अलग अलग विषय एक ही जगह पर हमें वहां मिलते हैं चरक संहिता में, इसलिए पढ़ने में कभी कभी थोड़ी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तीसरा एक पार्ट है महत्वपूर्ण कि अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर को रखा गया विषय था, सिर्फ सूत्र स्थान, बाकी की पूरी संहिता आगे पढ़नी है ऐसा अपेक्षित है। लेकिन जो सूत्र स्थान रखा है उसमें अष्टांग आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ संकल्पनाएं हैं, वो मेन फोकस है उनकी पहचान होना। क्योंकि 12th साइंस पास होके जब आप आते हो तो इनकी पहचान होना ये मेन फोकस है। ये फोकस रख के आपको अष्टांग हृदय पढ़ाया जाता है और चरक संहिता पढ़ाने का उद्देश्य अलग है। चरक संहिता पढ़ाने में आप एक अच्छे आयुर्वेद के क्षेत्र में एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाए। आप रिसर्च करो, आप एकेडमिक में रहो, आप प्रैक्टिस करो, जहां भी जिस भी क्षेत्र में आयुर्वेद के आपको जाना है वहां आपको एक्सेल होना है और वो कॉन्फिडेंटली एक्सेल होना है। ये एप्लीकेशन करने के लिए चरक संहिता बड़े ध्यान से पढ़नी है। ये फर्क ध्यान में रख के ही चरक संहिता का गहराई से अध्ययन हमें करना है। नेक्स्ट। अब हम चरक संहिता जब पढ़ाई शुरू करते हैं चरक संहिता की, तो काफी कुछ चर्चाएं होती रहती है। चरक संहिता का इतिहास के चरक पहले हुआ या सुश्रुत पहले हुआ, फिर चरक ने प्रतिसंस्करण किया यानी क्या क्या किया, चरक का एडिशन क्या होगा, दृढ़बल ने संपूर्ण किया। चरक संहिता की जो संरचना है यानी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा अलग प्रकार का क्यों है, यानी कैसे के निदान स्थान में यही 8 व्याधि क्यों दिए है, या तंत्र युक्ति जो तंत्र पढ़ने के लिए मदद करने वाली है वो ग्रंथ के लास्ट में क्यों दी गई है, पहले ही क्यों नहीं दी गई, या फिर संहिता की जो शुरुआत ही हुई है वो भेषज चतुष्क से क्यों हुई, स्वस्थ चतुष्क से क्यों नहीं हुई। ऐसे कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन आज का जो ये व्याख्यान है ये इनमें से किसी भी विषय पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। साथ ही ये बता दूं कि चरक संहिता एज अ होल ये कैसे पढ़नी है इस पर अभी हम फोकस करने वाले हैं। किसी एक ही विषय का गहराई से हमें यहाँ दिया है या इसकी चर्चा की है या एक ही विषय एक्सप्लेन किया है, ऐसे नहीं किया है।
सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो चरक पूर्वार्ध चरक उत्तरार्ध की एग्जाम देते हैं, वे स्टूडेंट्स जिनको आयुर्वेद अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसे स्टूडेंट्स, जो पीजी के स्टूडेंट्स है ऐसे स्टूडेंट्स, और जो नए टीचर्स है जो ये विषय नया नया पढ़ा रहे हैं ऐसे टीचर्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे स्थान वाइज कैसे कैसे जाना है ये लिखा है। अब समय का विषय विचार करके ही बीच बीच में हम थोड़ा स्किप करते जाएंगे। तो शुरू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ चरक संहिता। अभी चरक संहिता की पढ़ाई की शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट बीएमएस की पढ़ाई हो चुकी है और उसके बाद हम चरक संहिता पढ़ने वाले हैं, ऐसा यहाँ एज्यूम किया है। अगर आपने आप में से किसी ने फर्स्ट बीएमएस में दोष धातु मल विज्ञान में चरक की थोड़ी थोड़ी पहचान है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड ईयर में तो पढ़ना ही है। तो अगर पढ़ना है तो किस प्रकार से जाए, तो प्रायः ऐसे होता है कि जो टीचर है वो शुरू से पढ़ाने की शुरुआत करते हैं, मतलब पहले अध्याय से, सूत्र स्थान से, और वो भेषज चतुष्कसी शुरुआत होती है। पहला अध्याय जो है वो थोड़ा तो स्टूडेंट्स के थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन आगे जो है आरगवदी, अपामर्ग तंडुलीय, ये एकदम अलग सा पोर्शन हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है पढ़ाने का कि जो टॉपिक स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में मालूम है, जैसे सामान्य विषय सिद्धांत, दोष धातु के कुछ चैप्टर्स, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार, ऐसे चैप्टर्स, उनको पहले पढ़ाया जाए। अष्टांग में से पढ़ा हुआ है ये सब, फिर चरक में क्या अलग है ये बात आप वहाँ सिखा सकते हो। स्टूडेंट्स भी ये अगर ये अगर पहले पढ़े तो जो पहली फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो और सेकंड ईयर में चरक में जो लिखा है वो, उसकी कंपेयर करके ये विषय ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि कैसे शुरुआत करें पढ़ाने की, लेकिन स्टूडेंट जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहे और उनको चरक में रुचि निर्माण हो जाए, इस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। शुरू में ही अगर अपामार्ग तंडुलीय पढ़ा दिया तो अपामार्ग तंडुलीय यानी क्या है ये भी स्टूडेंट को मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी द्रव्य गुण कुछ सीखा नहीं है। इसलिए ये पूरा चैप्टर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, स्टूडेंट को निर्माण नहीं कर पाता। तो ऐसे जो चैप्टर्स है उनको बाद में पढ़ा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसका परिणाम चरक संहिता में इंटरेस्ट डेवलप होगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे पढ़ाने की शुरुआत की तो अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स भी ऐसे ही विषय चरक से पढ़ सकते हैं कि जो पहले उन्होंने अष्टांग हृदय में संक्षेप में पढ़े हैं, उसका विस्तार यहाँ उनको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। अब जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स थे जिन्हें आयुर्वेद का गहराई का ज्ञान चाहिए, आयुर्वेद के किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो भी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए चरक संहिता जो पढ़नी है वो चक्रपाणी टीका के साथ पढ़नी चाहिए। पीजी के स्टूडेंट जो है उन्हें तो ये अनिवार्य है। पीजी को जो स्टूडेंट संहिता सिद्धांत में आते हैं उन्हें भी कई बार संस्कृत की इतनी जानकारी नहीं होती, तो ये स्टूडेंट जो है ये थोड़े हिचकिचाते हैं टीका पढ़ने में। इसलिए यहाँ कुछ चैप्टर्स दिए हैं जिसकी टीका ज्यादा कठिन नहीं है। सूत्र स्थान का 21 नंबर का चैप्टर है अष्टौ निंदितीय। ये विषय समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, पढ़ने के लिए आसान है, क्योंकि चरक की रचना अलग है। अष्टांग हृदय की श्लोकों की रचना की, चरक में बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी है, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है 21 नंबर का, ये पढ़ने में आसान होता है, ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसलिए इसकी टीका शुरू में पढ़े ताकि टीका का भय चला जाए। ऐसे ये 3 चैप्टर्स है कि जिसमें आपको टीका का भय नहीं रहेगा और आप टीका के साथ फैमिलियर हो जाएंगे और आसानी से पढ़ना आ जाएगा आपको। 19 नंबर का जो चैप्टर है वो अष्टोदरीय है, जिसमें अलग अलग व्याधियों का एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया है। अभी आप सेकंड ईयर में आए हो तो व्याधियों की पहचान होनी चाहिए, तो इसके लिए ये व्याधियों के नाम, बहुत सारे व्याधियों के नाम आपको इसमें पता चलेंगे और नाम के साथ आपके टीचर इसके क्या क्या मेन सिम्टम है और ये व्याधि यानी क्या होता है ऐसा तो शॉर्ट में बताते ही है। तो बहुत सारे डिसीज की इसमें पहचान हो जाती है, इसमें भी समझने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर स्रोतो विमान का अध्याय है विमान स्थान में 5 नंबर का। ये जो सारा स्रोतसों का चैप्टर है ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, शायद शारीर क्रिया में या शारीर रचना में।
तो कितने स्रोतस है, स्रोतस यानी क्या है, स्रोतस के मूल स्थान क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें स्टूडेंट्स को मालूम है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी टीका भी बहुत ही सरल है, पढ़ने में और समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, और जहाँ कठिनाई होती है वहाँ आपके टीचर्स आपके साथ है ही। तो जिनको चक्रपाणी की टीका की शुरुआत करनी है वो इन 3 चैप्टर में से किसी से या तीनों से शुरुआत कर सकते हैं। चरक का पहला जो सूत्र स्थान का अध्याय है दीर्घंजीवितीय, इसकी टीका बहुत ही दार्शनिक और गहरी है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। अगर शुरुआत की, ये मेरा अनुभव है कई सालों का, कि अगर इससे हमने शुरुआत की तो बीच में ही बहुत सारे स्टूडेंट टीका पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे किसी चैप्टर से शुरुआत की तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि कभी ना कभी जिंदगी में अथ से इति तक चरक संहिता क्रम से पढ़नी ही है, ये बात ध्यान में रखनी ही है। लेकिन शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पढ़ते समय हर अध्याय में 17 श्लोका ऐसा एक वर्डिंग आता है। अष्टांग हृदय की जो रचना थी वो बिल्कुल अलग थी, वो सिस्टमैटिक है, एक से आगे एक से आगे एक ऐसा विषय आता जाता है। लेकिन चरक में अलग अलग प्रकार के विषय है, और कौन से चैप्टर में क्या विषय है ये नाम से बिल्कुल पता नहीं चलता। अष्टांग हृदय में अध्यायों के नाम स्पष्ट थे, ऋतुचर्या, दिनचर्या, वमन, विरेचन वगैरह। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कुछ के जिनके नाम से इस चैप्टर में क्या दिया है ये बिल्कुल अंदाजा नहीं आता। जैसे सूत्र स्थान का पहला ही चैप्टर है, उसका नाम है दीर्घंजीवितीय अध्याय। दूसरा है अपामार्ग तंडुलीय, आरगवदीय, उपकल्पनीय, या फिर 26 नंबर का है आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय। आत्रेय और भद्रकाप्य ये 2 ऋषि थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम से शुरुआत हुई है। या शारीर स्थान का पहला अध्याय है कतिधा पुरुषीय, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अध्याय में हम जिस अध्याय की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या विषय देखना है, कौन कौन से विषय समझने हैं, ये उसी अध्याय में 17 श्लोका ऐसा अध्याय के अंत में एक पार्ट दिया, 4-5 श्लोक होते हैं, एकदम अध्याय के लास्ट का पार्ट है, ये प्रत्येक अध्याय में होता है। तो 17 श्लोका यानी ये इस अध्याय में पूरा जो कुछ वर्णन किया है उन सब का ये एक इंडेक्सिंग जो अध्याय के लास्ट में आता है कि इस अध्याय में ये ऐसे 8-10 टॉपिक हमने डिस्कस किए, इस प्रकार के ये श्लोक होते हैं। तो या तो हमारे पास जो चरक संहिता है उसका जो एडिटर ने बनवाया हुआ इंडेक्स है वो इंडेक्स देखो, या फिर अध्याय में जो 17 श्लोका के नीचे लिखे हैं वो पॉइंट्स देखो, इससे हमें पता चलता है कि इस अध्याय में ये टॉपिक आए हैं। जब कि कोई भी पुस्तक पढ़ना जब हम शुरू करते हैं तब इसमें क्या पढ़ना है ये पहले पता होना चाहिए। वैसे इस चरक में हर अध्याय के लिए ये एप्लीकेबल है, एक एक अध्याय में हमें क्या पढ़ना है ये पहले समझ लें। तो ये इंडेक्स से हम समझ सकते हैं या 17 श्लोका से समझ सकते हैं, ये थोड़ा उल्टा तरीका है। पहले 17 श्लोका में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, फिर अध्याय शुरू करेंगे। ये सिर्फ हमारी समझ आसानी से हो जाए इसके लिए है। तो 17 श्लोका से क्या हमें लाभ होता है ये जरूरी है समझ लेना। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम थोड़ा विषय प्रवेश जो करने वाले हैं वो एक एक स्थान से जाएंगे, एक एक स्थान में कैसे कैसे क्या क्या समझ लेना है इस प्रकार से कोशिश करेंगे समझने की। सूत्र स्थान के कई सारे टॉपिक्स जो है वो अष्टांग हृदय में आपको एक बार अपने उसकी पढ़ाई हो चुकी है, ये विषय आपको मालूम है। ऐसे है जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, सामान्य विषय सिद्धांत, वेग की संकल्पना, आहार निद्रा के सारे डिटेल्स, विरुद्धान्न वगैरह सब, मात्रा विरुद्धान्न ये सब, फिर पाद चतुष्टय, स्नेहन स्वेदन, ये प्रकार स्वेदन के कुछ अलग से प्रकार इसमें चरक में अलग प्रकार है। तो कुछ बातें आपको मालूम है जो अष्टांग में हो चुकी है, तो ये चरक से समझ लेना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सामान्य सिद्धांत जो है वो आप पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हैं, क्रिया में भी पढ़ते हैं और अष्टांग में भी पढ़ते हैं, फिर भी चरक का पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इतना होने के बावजूद भी चरक के सूत्र स्थान में ऐसे कई सारे टॉपिक है कि जिनको मालूम कर लेना अत्यावश्यक है।
इसमें से शुरू के अध्याय में ही आई हुई 28 यवागु है, 50 महाकषाय, पंचविध कषाय कल्पना, 10 नंबर का महाचतुष्पाद का चैप्टर, विधि शोणितीय चैप्टर, इंद्रियोपक्रमणीय चैप्टर, आत्रेय भद्रकाप्य, इसमें बहुत सारे अलग अलग विषय आए हैं। और ये जो सारे विषय है ये आपका फाउंडेशन जो है आयुर्वेद एज अ मेडिकल साइंस, आयुर्वेद ये एक वैद्यक शास्त्र है, इसकी दृष्टि आपकी क्लियर करेगा ये सारे चैप्टर जो है। इसलिए सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन को बाजू में रखना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ समझ लेना है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। महाचतुष्पाद नाम का एक चैप्टर है, उसके पहले खुट्टाक चतुष्पाद ऐसा चैप्टर आया है 9 नंबर का। खुट्टाक चतुष्पाद में चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन किया है, वही विषक द्रव्यानि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय। इसके बाद ये महाचतुष्पाद ये चैप्टर अलग सा लिखा गया है और इसमें एक मेडिकल, हर एक मेडिकल पैटर्निटी के हर एक पर्सन को मालूम होनी चाहिए, ऐसी कुछ गहराई की बातें बताई है। इसमें एक बात आई है कि अत्रेय मैत्रेय ऐसे लोग होते हैं, मतलब मैत्रेय ये स्टूडेंट है अत्रेय का, अत्रेय मुनि का, मैथम और अत्रेयमती ऐसा उसे नामाभिधान दिया गया है कि ये बार बार हमें समाज में देखने को मिलता है। मैत्रेयमती क्या है कि ये संशय की बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, या ये अर्ध ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसके कारण जो प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, ये आजकल भी हम देखते हैं हर जगह पे ऐसे प्रश्न है। तो इस प्रकार से मैत्रेय के मन में ऐसे विचार आया कि चिकित्सा चतुष्पाद जो अभी आपने पहले बताया सब कि इनके ये 4 है, इनके ये 4 गुण है, और ये अगर सब गुण संपन्न है तो कोई भी चिकित्सा असफल नहीं होती। लेकिन मैत्रेय ने एक ऑब्जर्वेशन बताया कि अगर ऐसा है तो हम तो समाज में ऐसे देखते हैं कि इतना सब होने के बाद भी सारा चिकित्सा चतुष्पाद अपने गुणों से संपन्न था, लेकिन फिर भी पेशेंट मर गया। या हम उल्टा भी देखते हैं कि कोई गरीब पेशेंट है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको कोई भी मेडिकल सर्विस अच्छी तरह से नहीं मिली है, जिसको बहुत कुछ गहरी बीमारी हो गई, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया। ऐसे मैत्रेय का ऑब्जर्वेशन है और वो सही ऑब्जर्वेशन है। समाज में ये सब देखने को मिलता ही है, हमें देखते ही हम ये हमेशा ही देखते हैं। तो इसलिए मैत्रेय का कहना है कि आप ये जो बता रहे हैं कि चतुष्पाद का बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसा चतुष्पाद का कोई रोल डिसीज क्योर होने में, यानी व्याधि ठीक होने में चतुष्पाद का कोई बड़ा रोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा मैत्रेय का कहना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस पर आत्रेय उसका उसका जो एक ऑब्जेक्शन है उसका खंडन करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई है कि वो बीच में आप पढ़ लेना, सब अभी डिस्कस करने का समय नहीं है इतना। लेकिन लास्ट पॉइंट ये है, उसमें आत्रेय बताते हैं कि ये जो तुम समाज में देख रहे हो वो सही बात है कि ये चिकित्सा के चतुष्पाद उपस्थित होते हुए पेशेंट मरता है और चतुष्पाद गुण संपन्न नहीं है फिर भी पेशेंट जीवित रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है इसका कि चिकित्सा चतुष्पाद का कोई रोल नहीं, चतुष्पाद का रोल इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन डिसीज क्योर होना और डिसीज क्योर ना होना, ये मतलब व्याधि ठीक होना, पेशेंट ठीक हो जाना या पेशेंट ठीक ना होना, ये डिसीज के प्रकार पर, व्याधि के प्रकार पर डिपेंडेंट करता है। और फिर आगे चल के साध्य असाध्य प्रत्याख्य याप्य ऐसे प्रकारों का वर्णन किया है। यानी अगर किसी को याप्य व्याधि हुआ है या प्रत्याख्य व्याधि हुआ है तो वो मरने ही वाला है, साध्य व्याधि हुआ है तो बिना चतुष्पाद के कभी कभी ठीक हो सकता है। और इसके आगे 4 महत्वपूर्ण वाक्य आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो हर एक को मालूम होना आवश्यक है, जिन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान चाहिए उन्हें तो इसका बहुत विचार करना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। 4 वाक्य इस प्रकार से है कि जिससे हमें पता चलता है कि चिकित्सा की लिमिटेशन क्या है और चिकित्सा की कितना बड़ा स्कोप है। ये दोनों बातें इससे स्पष्ट हो जाती है। नहीं सर्वे व्याधयः भवन्ति उपाय साध्याः, ऑल डिसीजेस आर नॉट क्यूरेबल विद ट्रीटमेंट। यानी इस पृथ्वी तल पर कुछ व्याधि ऐसे है कि जो असाध्य ही है, उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। दूसरा एक वाक्य आता है, न च उपाय साध्यानाम व्याधीनाम अनुपायेन सिद्धि अस्ति। ऐसे कुछ डिसीजेस है कि जिन्हें ट्रीटमेंट के बाद ही जो ठीक होंगे, विदाउट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होने वाले। तो कौन से डिसीज ट्रीटमेंट से ठीक होंगे, कौन से विदाउट ट्रीटमेंट होगा, ये जज करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड।
न च असाध्यानां व्याधीनां भेषज समुदायः अयमस्ति। जो असाध्य व्याधि है इस पृथ्वी तल पर, जो असाध्य व्याधि है, उन व्याधियों के लिए ये सारी चिकित्सा नहीं है। यानी जो इनक्यूरेबल है वो इनक्यूरेबल ही रहेंगे। और नहीं अलम ज्ञानवान भिषक मुमूर्षुम आतुरम उत्थापयितुम समर्था। ऐसे है आगे। यानी अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, किसी असाध्य व्याधि हुआ है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो कितना भी ज्ञानवान भिषक आ जाए, इतने डूबे हुए, इतने मृत्यु की तरफ गए हुए मनुष्य को बचाने में वो सक्षम नहीं रहता। इससे हमें हमारी मर्यादा क्या है और हमारा हम कितना काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कितना कर सकते हैं और कहाँ हमें रुकना है, ये बातें इससे पता चलती है। तो ऐसे चरक में कई सारे अलग अलग सूत्र स्थान में विषय आए हैं जो टीचर आपको अलग अलग उदाहरणों से समझा देंगे और स्टूडेंट्स को भी ऐसे सारे विषय अलग अलग उदाहरणों से समझ लेना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जिन्हें आप आयुर्वेद का बड़ा अच्छा ज्ञान चाहिए, उन्हें कुछ यहाँ रेफरेंस लिखे हैं कि कम से कम इतने सूत्रों का, यानी ये तो कुछ उदाहरण मात्र है, ऐसे कम से कम 30-40 सूत्र है कि इनकी ऐसे इन सूत्रों का सटीक वाचन और मतलब सटीक अभ्यास करना चाहिए। सामान्य विशेष सिद्धांत, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, ये जो सूत्र है, ऐसी एक लिस्ट यहाँ दी है। ये केवल नमूना है, ऐसे सूत्र आपको आपके टीचर्स बताएंगे, तो उनका आपको सटीक अध्ययन करना है, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्लाइड। फिर है निदान स्थान। निदान स्थान में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई करते हैं। इसमें 8 व्याधि आए हैं, इसका निदान पंचदश में दिया है। ये 8 व्याधि छोड़ के और भी कुछ बातें लास्ट और फर्स्ट चैप्टर में है। नेक्स्ट। निदान स्थान पढ़ते समय ये बात एक ध्यान में रखनी है कि हम जो ये निदान स्थान पढ़ रहे हैं, इसमें व्याधि समझ रहे हैं, तो वो जो लक्षण है व्याधि में आए हुए, उन लक्षणों का अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये सीवियरिटी दर्शाते वाले लक्षण कौन से हैं, मॉडरेट व्याधि के लक्षण कौन से हैं, माइल्ड लक्षण कौन से हैं। ऐसी कुछ कैटेगरी हमें पेशेंट की करनी जरूरी पड़ती है प्रैक्टिस में। तो अगर संस्कृत भाषा से दूर है स्टूडेंट्स, इसलिए कभी कभी ये इस प्रकार से पढ़ना छोड़ देते हैं और भाषांतर से भी ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान देके अर्थ समझने की कोशिश की तो बातें समझ में आ जाएगी। जैसे पित्तज गुल्म में लिखा है, वो जो गुल्म है वो गुल्म दह्यते, स्विद्यति, ऊष्मायते, क्लित्यति, शिथिलयो स्पर्शासह, ये सारे जो लक्षण है, ये सारे लक्षण ये सूचित करते हैं कि उस गुल्म का, वो गुल्म यानी वो जो अब दोष का संचय अंदर है, वो गुल्म जो है वो अब पाक की तरफ जा रहा है। पाक की तरफ जा रहा है यानी अंदर ही उसका अपने आप ही भेदन हो जाएगा और इस तरह से एब्डोमेन में या पेरिटोनियल कैविटी में या अन्नव स्रोतस में कहीं भी ऐसे इस प्रकार से वो बर्स्ट हो गया, तो कितनी बड़ी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये वो लक्षण सब पढ़ के आपकी समझ में आना चाहिए। इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना, इतने प्रमाण में संस्कृत का ज्ञान होना, कि इससे ही पता चलता है कि आगे चिकित्सा में लिखा है विषक अत्येकम मत्वा पित्तगुल्मम उपाशय, यानी पित्तगुल्म का पेशेंट है तो ये ही है ऐसा समझ के ही उसकी चिकित्सा बेशक ने करनी चाहिए। यानी ये कभी भी इमरजेंसी में लैंड हो सकता है, ऐसा समझ के उसके सारे लक्षण देख के चिकित्सा करनी है। ऐसे कई, इसलिए निदान स्थान पढ़ते समय लक्षणों का अर्थ समझ लेना, और अगर आपको नहीं समझा अर्थ तो आप डिक्शनरी का उपयोग करो, टीचर से पूछो, एक दूसरे से डिस्कस करो, किसी ना किसी प्रकार से अर्थ समझ लेना आवश्यक। फिर और भी ये कुछ 2-4 बातें हैं निदान स्थान में कि जो समझ में आनी चाहिए, जैसे विरुद्ध उपक्रमत्व यानी क्या है, विकार विघात भाव अभाव ये क्या है। अब अभी इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। निदान अर्थ कर लास्ट जो चैप्टर है 8 नंबर का, उसमें 2-3 बातें बताई है जो बहुत सारे उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन हमें अभी दिखाई देते हैं आजकल। एक निदान अर्थ को रोग नाम की एक कंसेप्ट है कि एक डिसीज दूसरे डिसीज को डेवलप करता है और डेवलप करके कभी कभी खुद सबसाइड होता है, कभी कभी दोनों डिसीज शरीर में रहते, तो उसे व्याधि संकर ऐसे कहा गया है।
इसके उदाहरण भी चरक संहिता में दिए हैं। अब टीचर्स का ये काम है कि उन उदाहरणों के अलावा अन्य उदाहरण भी बताने हैं। और पीजी के स्टूडेंट्स जो है उन्हें तो करंट डिसीजेज जो है उनके उदाहरण भी बताना आना चाहिए, यानी करंट सिनेरियो जो दिख रहा है हमें समाज में उनके उदाहरण बताना आना चाहिए। शुद्ध चिकित्सा जो है उसका भी उसकी व्याख्या भी यहाँ दी गई है। और पीजी स्टूडेंट्स को अशुद्ध चिकित्सा के उदाहरण भी बताना आना चाहिए, आयुर्वेदिक भी एलोपैथिक भी। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में अशुद्ध चिकित्सा नहीं, हमारी गलती से कभी कभी अशुद्ध चिकित्सा हो सकती है। तो ये सारे एक उदाहरण पीजी स्टूडेंट का ये यूजी से पीजी डिफर करता है, तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे डिफर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आगे विमान स्थान है। विमान स्थान जो है ये आयुर्वेदिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक फाउंडेशन है, ऐसा लोग समझते हैं। ये एक्चुअली ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले रोगमादु परीक्षेत तदनंतरम औषधम, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, पेशेंट की एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए, कैसे ड्रग का सिलेक्शन करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें आई हैं। और इसी से सारे रिसर्च, इसी आधार से सारे रिसर्च होते हैं, इसलिए इसे रिसर्च का गाभा समझा जाता है। और इसमें वो अगला पार्ट सारा वाद वगैरह वो भी आया है। नेक्स्ट। विमान स्थान के जो चैप्टर्स है, ये 8 चैप्टर्स के नाम यहाँ लिखे हैं। रस विमान, त्रिविध कुक्षीय, इन नामों से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। एक जनपदोद्वंश से पता चलता है, स्रोतो विमान से पता चलता है, या व्याधित रूपीय ऐसे नाम से पता चलता है। लेकिन एक ही अध्याय में अलग अलग विषय बहुत सारे कवर किए हैं, और पूरा का पूरा विमान स्थान पढ़ने लायक और एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने लायक ही है। इसलिए विमान स्थान की पढ़ाई अच्छी तरह से करनी ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। विमान स्थान में दैव पुरुषकार, इस एक बहुत ही जो वैयक्तिक विषय हर एक का, अपना अपना दैव क्या है, अपना अपना पुरस्कार क्या है, यहाँ से लेके केस प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, यहाँ तक सारी बातें, बहुत सारी बातें आई है। और ये सारी बातें चिकित्सा कैसे हमें प्लान करनी है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो जिन्हें आयुर्वेद का अच्छा गहराई का ज्ञान चाहिए, इन्हें प्रकृति समवाय, विकृति विषम समवाय, आतुर परीक्षा भाव, आम, त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुंजित, सदातुर यानी वातलाद्य सदातुराहा, गुरु लघु व्याधित, ऐसी सारी जो कंसेप्ट है बेसिक बहुत ही, वे कंसेप्ट और अलग प्रकार का एक डिसीज का क्लासिफिकेशन। तो विमान का चैप्टर जो है वो तो याद ही करना है, इसलिए विमान स्थान ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा हॅलो हॅलो मॅम. शीतल, आवाज गेला काय? हा, येतोय कंटिन्यू करा. हॅलो मॅडम. हॅलो. हॅलो मॅडम, इथून फोन करते. हो हो येतोय, चांगलं होतं. हो बोला. शुरू करू ना? हाँ हाँ, शारीर स्थान आता है इसके आगे। या स्लाइडला 4-5 वेळा क्लिक करतो, त्रिकोणाच्या पुढे सगळं दिसू दे। ओके. शारीर में बहुत ही अलग प्रकार के 8 चैप्टर आते हैं। शारीर स्थान का पढ़ाई अगर करनी है तो पहले शारीर स्थान यानी है क्या, ये समझ लेना आवश्यक है। इसलिए हेलीकॉप्टर व्यू से अगर देखा शारीर स्थान तो इस प्रकार से है कि इसमें स्थूल शरीर का वर्णन है, सूक्ष्म शरीर का वर्णन है, कारण शरीर का वर्णन है, और अंत में मोक्ष तक विषय जाता है।
अतः परम ब्रह्मभूतो भूतात्मा न उपलभ्यते। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान तक यहाँ वर्णन किया हुआ है, सारी बातें आई है। तो एक्चुअली जिस पर हम चिकित्सा करने वाले हैं वो जो स्थूल शरीर है उसका वर्णन 6 और 7 नंबर के चैप्टर में आता है, शरीर विषय और शरीर संख्या। 2, 3, 4, 8 ये जो चैप्टर है ये स्थूल शरीर से ही संबंधित चैप्टर है, लेकिन इसमें गर्भावक्रांति, गर्भ की मातानुमासी की वृद्धि, गर्भिणी परिचर्या, स्तुति का परिचर्या, गर्भ प्रसव, ऐसी सारी बातें आती है जो प्रसूति तंत्र से रिलेटेड। और पहला और 5वां जो चैप्टर है ये सूक्ष्म शरीर के संबंधित है, जो मोक्ष के ज्ञान की तरफ लेके जाता है। तो हमें कहाँ इंटरेस्ट है इनमें से, इसके हिसाब से ही इसकी जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है वे इसके जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है वो पढ़े, और जिन्हें आयुर्वेद में इंटरेस्ट है वो स्थूल शरीर के चैप्टर्स पढ़े, और जिन्हें मोक्ष में भी इंटरेस्ट है वो पूरा ही शारीर स्थान पढ़े। ऐसा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। इनके अलावा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शारीरिक स्थान के 6 नंबर के अध्याय में आयुर्वेद का अच्छी तरह से ज्ञान होने के लिए कुछ पॉइंट्स आए हैं। शरीर विषय यही ये चैप्टर है, शरीर स्थूल शरीर से ही रिलेटेड है। इसमें शरीर वृद्धि कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, आहार परिणाम कर भाव, ये 3 जो है ये फर्स्ट ईयर में हमारी पहचान के विषय है। और ये जो 2 आ गया है यौगपत्यन तु धातु नाम, ये इसमें चिकित्सा के रिलेटेड ये सूत्र है। और शरीर संख्या, सामर्थ्य, गुण यानी ये 20 गुण, ये 2 विषय भी इसमें समझ लेना जरूरी है। तो जिन्हें आयुर्वेद का गहराई से ज्ञान चाहिए इन्हें ये सारी विषय जो है ये सटीक पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर शारीर स्थान के अध्याय में और भी कुछ बातें आती है जो चिकित्सा के लिए जरूरी है, अच्छे चिकित्सक होने के लिए जरूरी है। कैसे भी प्रैक्टिस करो आप, लेकिन ये बातें आपको मालूम होना आवश्यक है। मनोविज्ञान है आया हुआ, स्मृति के 8 कारण आए हैं अध्याय 1 में, जो कई बार पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन ये जो स्मृति के 8 कारण है, जो स्मृति नाश के पहले स्टेज के पेशेंट है उन्हें हम चिकित्सा के तौर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं थोड़े थोड़े प्रमाण में। मानस प्रकृति है जो बहुत ही आवश्यक है समझना। फिर पार्थिवादी शारीरिक घटक है और क्लीब प्रकार है। यहाँ से जो आए हुए क्लीब के प्रकार है ये अलग प्रकार के क्लीब है, मतलब चिकित्सा स्थान में शुक्रक्षय से आने होने वाला क्लीब वो अलग है, और यहाँ जो क्लीब के प्रकार आए हैं वो बिल्कुल ही अलग है, और ऐसे लोग समाज में आज हमें दिखते हैं, इसलिए ये सारी बातें समझ लेना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर आता है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान जो है ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट समवॉट निग्लेक्टेड इन टीचिंग एंड स्टडिंग। यानी टीचर भी कभी कभी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं या आप सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देते हैं, और स्टूडेंट भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी अलग है, कभी कभी समझ में नहीं आते कि ये क्या लक्षण लिखे हैं। तो पहले तो इंद्रिय स्थान का अर्थ मालूम होना चाहिए कि इंद्र शब्देन प्राणः उच्यते, तस्य अंतगतस्य लिंगम दृष्टाख्यम इंद्रियम। प्राण का नाश सूचित करने वाले ऐसे जो लक्षण है उनका वर्णन इस इंद्रिय स्थान में आया है। इंद्रिय स्थान के इस प्रकार से इंद्रिय स्थान उपेक्षित करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे कॉलेज में भारतीय विद्यापीठ में तो ये करीबन 13-15 साल हुए होंगे। मैंने एक स्टूडेंट के साथ मिलके, ये मेरे पीजी के स्टूडेंट का काम है, क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंद्रिय स्थान फ्रॉम चरक संहिता, वैद्य अनुराग वत्स। वैद्य अनुराग वत्स अभी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कॉलेज में देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने इनसे ये काम मिलके हमने ये काम किया था। इसमें ये काम करने के बाद ये जो अरिष्ट इंद्रिय में लिखे हुए हैं इंद्रिय के सारे चैप्टर्स में, ये अलग तरीके से समझने लेना और पेशेंट में उसको देखना, ये हमें सुविधा हो। तो ये जो इंद्रिय स्थान के लक्षणों का क्लासिफिकेशन है किया हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, मतलब ये 1, 2, 3 नंबर वाली स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अरिष्ट। ये पुरुषाश्रित, पुरुषानाश्रित, ये चरक ने ही दिए हुए हैं। ज्ञानेन्द्रिय के सापेक्ष इंद्रिय अरिष्ट लक्षण है, ये तो अध्याय से ही पता चलता है। फिर सूत्र स्थान में चक्रपाणी ने एक जगह पे नियत लक्षण, अनियत लक्षण ऐसा भी वर्णन करके अरिष्ट का कुछ वर्णन किया है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा समझ में तब आता है ऐसे नहीं, इसलिए भेदता ही, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, इस न्याय से फिर हमने चरक संहिता में आए हुए सारे
अरिष्टों का मतलब इंद्रिय स्थान के में आए हुए सारे अरिष्टों के अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण किए, जिससे हमें ये अरिष्ट थोड़े थोड़े समझ में आ गए उस वक्त। तो एक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से था कि मृत्यु की काल मर्यादा क्या है। तो कुछ लक्षण सत्य प्राणहर है, कुछ कालांतर प्राण है। सत्य प्राणहर में भी फिर 15 दिन में मरेगा, 2 दिन में मरेगा, 1 दिन में मरेगा, ऐसे कुछ और सब टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर अधिष्ठान के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय रिलेटेड, इस प्रकार के। फिर एक क्लासिफिकेशन है वो जो मनुष्य है जिस पर अरिष्ट दिख रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, यानी वो स्वस्थ है कि रुग्ण है। क्योंकि कुछ ऐसे अरिष्ट है जो जिसमें रोग नहीं बताए हैं, लेकिन ये मनुष्य 1 साल के बाद मरेगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और कुछ तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा वैद्य, औषध, आहार विहार, दूध, शकुन, अपशकुन, आतुर का घर, ऐसे भी कुछ मिसलेनियस, ऐसे भी कुछ अरिष्ट है। ऐसी सारी पढ़ाई करके फिर हमने 50 क्रिटिकली इल पेशेंट का एक सर्वे स्टडी किया और ऐसे उनमें जो अरिष्ट लक्षण मिले उनका इस प्रकार से हमने उसकी कैटेगरी की थी और ये बड़ा अच्छा एक अभ्यास हुआ था। तो ऐसा जो एक निग्लेक्टेड विषय है, देखिए जो क्लिनिकली अच्छा है लेकिन पढ़ाई में निग्लेक्ट किया जाता है, उस पर भी एक अच्छा काम ये हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर ये सब काम हुआ है वगैरह ठीक बात है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है इंद्रिय स्थान का। तो इंद्रिय स्थान याद रखने का एक सिंपल तरीका ये है कि चार्ट बनवा लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यूजी के जो स्टूडेंट्स है वो चैप्टर का नाम लिखे, अरिष्ट के प्रकार लिखे और उसके 5 एग्जाम्पल लिखे। यानी पेपर में किसी भी प्रकार से प्रश्न आ गया तो ये चैप्टर के नाम से भी प्रश्न आ सकता है कि कभी कभी अमुक अमुक अध्याय का सारांश लिखो, तो ये टेबल आपकी काम में आएगा। अरिष्ट के ये अरिष्ट कौन सा है ऐसा एमसीक्यू आ गया तब भी ये टेबल काम में आएगा, शॉर्ट नोट आ गई तब भी काम में आएगा। तो यूजी एक प्रकार का इस प्रकार से टेबल बनवा सकते हैं और पीजी के स्टूडेंट जो है उन्हें इसमें एडिशन करनी है। एक तो एग्जाम्पल ज्यादा आने चाहिए और करंट सिनेरियो में कौन कौन से लक्षण इससे मिलते जुलते हैं, या यही लक्षण है जो इस व्याधि में अभी माने जाते हैं एलोपैथी के हिसाब से। ऐसे ये लिखना या अनुभव का कुछ लिखना ये पीजी के लिए आवश्यक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इस प्रकार से इंद्रिय स्थान का जिस्ट में अच्छा अभ्यास हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। आता है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में है तो वैसे 30 चैप्टर, लेकिन 30 चैप्टर में कई सारे व्याधि कवर हुए हैं, तो टोटल व्याधि 30 है ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसमें कई सारे व्याधियों का निदान पंचक आया है जो हमें पढ़ना ही है। जैसे हमने निदान में लक्षण का महत्व देखा, वैसे चिकित्सा में भी लक्षणों के अर्थ समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक एक व्याधि की अलग अलग अवस्थाएं आई है और उसमें से कौन सी अवस्था सीवियर है, कौन सी अवस्था मॉडरेट है, ये सारी बातें समझ में आने के लिए लक्षणों के अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है। चिकित्सा स्थान के एक चैप्टर में आज के हिसाब से अगर देखा जाए, कॉन्टेम्पररी जो साइंस मेडिकल साइंस अभी है उसके हिसाब से 1 से ज्यादा व्याधि कवर किए हुए हैं। ऐसा हमें चिकित्सा स्थान के अध्याय पढ़ते पढ़ते पता चलता है। ये शुरू में नहीं होगा, पहली बार ही पढ़ा तो ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके टीचर ये समझा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक उदाहरण यहाँ दिया है वातरक्त का। वातरक्त व्याधि तो हम उस अध्याय से समझ लेंगे, लेकिन हमारे सामने जो पेशेंट आते हैं वो अलग अलग प्रकार के एग्जिबिट लेके आते हैं। वातरक्त यानी गाउट ऐसा बहुत सारे पुस्तकों में भी लिखा है, लेकिन इन्फेक्शियस अर्थराइटिस, सोइनोवाइटिस, गाउट, टीबीटी, ऑस्टियोमाइलाइटिस ऐसी कई सारी कंडीशंस है कि जिसकी चिकित्सा वातरक्त की चिकित्सा के आधार से हम करते हैं और वो सफल भी होती है। ये जो बातें हैं ये समझ लेना जरूरी है। यानी आपका चरक संहिता में इस प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ता रहना चाहिए। यानी चरक संहिता का अध्ययन इस प्रकार से अनुक्त व्याधि, इसको इन सब व्याधियों को अनुक्त व्याधि ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये इस नाम से चरक में नहीं आए हैं। तो इनकी चिकित्सा भी ऐसे चरक संहिता के अच्छे उचित अध्ययन से हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये दूसरा उदाहरण ग्रहणी का है। ग्रहणी का जो चैप्टर है इसमें एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे व्याधि इसकी चिकित्सा, मतलब ग्रहणी में जो जो ड्रग्स आए हैं इनसे इसकी चिकित्सा हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये ग्रहणी का एक नाम है ऐसा माना जाता है।
लेकिन गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपर एसिडिटी, एमीबियासिस जैसे सारे डिसीजेस है जो गृहिणी की चिकित्सा से हम गृहिणी की चिकित्सा की अच्छी पढ़ाई की है, तो उन्हीं ड्रग से उनकी उसी औषधियों का परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जिन्हें आयुर्वेद प्रैक्टिस अच्छी करनी है, रिसर्च अच्छा करना है, एकेडमिक में अच्छा एक्सेल होना है, स्टूडेंट्स में पॉपुलर होना है आयुर्वेद अच्छा पढ़ा के, उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि चिकित्सा स्थान जब पढ़ाना है तो चिकित्सा स्थान एक्सप्लेन करने के लिए, चिकित्सा समझने के लिए, डिसीज समझने के लिए पहले पार्ट का कुछ भाग आना बहुत आवश्यक है। उसमें सूत्रस्थान का 20 नंबर का चैप्टर नानात्मज व्याधि, विधि शोणितीय अध्याय, 28 नंबर का चैप्टर जिसमें धातु प्रदोषज व्याधि वगैरह आया है, विमान स्थान पूरा एक्चुअली, लेकिन पहला और 8वां चैप्टर स्रोतो विमान। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कल्पसिद्धि स्थान के साथ नेक्स्ट स्लाइड, हाँ 28 यवागु, 50 महाकषाय, शोधन गण, लंघन ब्रुवणीय अध्याय और द्रव्य गुण का पूरा चैप्टर 26 नंबर का। और आपकी बैकग्राउंड पक्की होनी चाहिए, फिर आप चिकित्सा अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हो, आयुर्वेद अच्छी तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 39 नंबर। अब चिकित्सा स्थान की जो पढ़ाई करनी है उसमें चिकित्सा मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी हो या कैसे भी हो, व्याधि समझने की दृष्टि से हो, नोट्स तो बनवाने ही पड़ते हैं क्योंकि एक एक चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो नोट्स बनवाने के चैप्टर खोल दिया, पहला के नोट्स निकाले, उसके कुछ पॉइंट्स निकाले, ऐसे नहीं करना है। जो टीचर्स जो है नए नए अभी अध्ययन क्षेत्र में आए हुए टीचर और स्टूडेंट्स, इन्होंने ये बात ध्यान में रखनी है, पहले पूरा चैप्टर पढ़ो नोट्स बनाने के पहले, या स्टूडेंट्स को किस तरीके से बताना है ये प्लान करने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर अपने नोट्स बनवाओ। एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि पांडु चिकित्सा, पांडु निदान पंचक आया है, मतलब हेतु आए, लक्षण, संप्राप्ति, ये सब आ गया। फिर चिकित्सा शुरू हुई, फिर अलग अलग गृह आए, विरेचन के योग आए, कल्प आए, नवायस दो, ताप्यादि लोह, पुनर्नवा, मंडूर वगैरह वगैरह, अरिष्ट आए। और उसके बाद बहुत आगे 2 लाइन दी है कि पांडुरोग प्रशांत्यर्थम इति प्रोक्तम महर्षिना विकल्प में तत्विशेषा पृथक दोष बलम प्रति, यानी इतने सारे जो कल्प पहले दे चुके हैं इसमें दोषों का कोई भी जिक्र नहीं किया है कि कौन से दोष में कौन सा घृत, कौन से दोष में कौन सा विरेचन। कहीं कहीं आया है कफ प्रधान में ये दे दो ऐसा, लेकिन अब जहाँ आचार्य क्या बताते हैं कि ये हमने जो कुछ बताया है पांडु रोग में, इतने इतने सारे कल्प, इतने सारे योग बताए, विरेचन के घृत बताए, सब बताया, ये कैसे देने हैं, तो दोषों का बलाबल देख के इसमें से आप चूज करो। तो स्टूडेंट्स को ये बताते समय टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि दारिमादि घृत आया है, कटुकादि घृत आया है, द्राक्षादि घृत आया है, तो ये सब मिलके पांडु में देने हैं, ऐसी बात नहीं है। पांडु के कौन से प्रकार में दारिमादि चलेगा, कौन से प्रकार में द्राक्षादि चलेगा, ये टीचर का काम है कि ये इस प्रकार से सब समझ के ही फिर स्टूडेंट्स को ये समझा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर अरे हो, ऑनलाइन लेक्चर
आवाज नहीं आ रही है। Not audible. Hello. Hello. Unable to hear the speaker. आ रही Ma'am, you are not audible.
Not audible. मॉडरेटर की कानुकता बताई है और वैशिष्ट्य कल्पना के सिद्धांत है। इसमें से कुछ शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। और कल्पस्थान की पढ़ाई का सबसे आसान तरीका ये है कि ऐसे दो चार्ट बनवाओ। ये हमने भारतीय विद्यापीठ में वमन कल्प और विरेचन कल्प के बनवाए हैं। वनस्पति के कॉलम में आप उसके पर्याय नाम लिख सकते हो। फिर उसका अधिकार यानी कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है, जैसे कि देवडांगरी ज्वर श्वासिकता में, इक्ष्वाकु काश्वास विशेष सर्दी में, इस प्रकार से। उसकी मात्रा दी है तो वो मात्रा, उसका उपयुक्त अंग कौन सा है, ये उपयुक्त अंग जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए मालूम होना चाहिए। फिर कल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी गुटी वटी कषाय दूध सुरा मंड वगैरह स्वाद क्या क्या है वो, और एक उनकी संख्या क्या है कल्पों की, के मदन फल के 133 है, चिमूत के 39 है, इस प्रकार से ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। और ये कुल मिला के कितने होते हैं। ऐसा ही विरेचन का अगर आपने चार्ट बनवा और इतना ही चार्ट आप देख के गए एग्जाम के लिए तब भी काफी है। ये चार्ट और वो पिछले स्लाइड में थी वो 2-3 बातें। ये कल्पस्थान की पढ़ाई ऐसे जल्दी से हो जाती है। फिर ध्यान में रखने वनस्पतियां समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर लास्ट में है सिद्धि स्थान। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में लाने का ही स्थान है। इसमें पंचकर्म का सारा डिटेलिंग दिया हुआ है। तंत्र युक्ति लास्ट में आई। इस चैप्टर के जो नाम है वो जैसे चिकित्सा स्थान के नाम से पता चलता है कि इसमें अर्श की चिकित्सा है, अतिसार की चिकित्सा है, वैसे इस नाम से भी काफी बात क्लियर हो जाती है कि इसमें क्या है दिया हुआ है। एक ही अलग सा चैप्टर इसमें आया है त्रिमर्मीय सिद्धि। वो अलग तरीके से पढ़ के उसमें से हमें समझ में आ जाता है कि बस्ती का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धि स्थान का एक उदाहरण देखते हैं। स्नेह व्यापद सिद्धि ऐसा एक अध्याय आया है। व्यापद यानी पंचकर्म करते समय जो कुछ गलतियां हुई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस निर्माण होते हैं, उन्हें व्यापद ऐसे यहाँ कहा है। तो स्नेह व्यापद सिद्धि अध्याय का नाम है। अर्थ स्पष्ट है कि स्नेह बस्ती के व्यापद इसमें बताए हैं। स्नेह बस्ती यानी अनुवासन बस्ती। इतना ही नहीं, लेकिन इसमें और 4-5 प्रकार के तेल आए हैं। इन तेलों में ये वात विकारों का, ये वात पित्त विकारों के लिए ऐसे 5 तेल बताए हैं। विशिष्ट सिद्ध तेल है ये। अब पेपर में प्रायः जो प्रश्न आता है वो अनुवासन बस्ती के व्यापद लिखो, ऐसे ही आता है। लेकिन जो जिन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान चाहिए उन्हें ये एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने जैसे तेल है ये सारे। और बहुत सारे पंचकर्म की प्रैक्टिस करने वाले लोग इस अध्याय में आए हुए तेलों का अच्छा उपयोग करते हैं। इसमें कृमिक बस्ती भी एक आया है, वो भी बड़ा इफेक्टिव है। तो इसके अगर अनुवासन बस्ती के व्यापक सीखने हैं तो वो जो लिखे हैं एक्चुअल संहिता में वो श्लोक कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही श्लोक में सारे नाम दिए हैं, एक ही श्लोक में सारे हेतु दिए हैं, फिर बीच बीच में लक्षण और चिकित्सा दी है, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये टीचर का काम है और स्टूडेंट ने भी इस प्रकार से अपने अपने टेबल बनवाने हैं। व्यापक का नाम, व्यापक क्यों होता है, व्यापक के लक्षण और व्यापक की चिकित्सा, ऐसा एक सिंपल टेबल अगर तैयार किया। ये नाम है व्यापक के 6, वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, ऐसे। ये वातावृत व्यापक क्यों होता है उसका ये हेतु है कि शीत या अल्प बस्ती का जो द्रव्य है वो शीत है या अल्प है, तो वातावृत हो जाता है वो स्नेह। और उसके ये लक्षण होते हैं अंगमर्द, ज्वर, आत्मान, ये। और उसके लिए चिकित्सा है स्निग्ध अम्ल, लवण, उष्ण, निरूह और उसी प्रकार के तेल का अनुवादन। अब पीजी का काम है कि ये चिकित्सा में द्रव्य कौन से है वो लिखना चाहिए, ये व्यापक क्यों होते हैं ये लिखना चाहिए, मतलब हेतु से संप्राप्ति डेवलप कैसे होती है ये भी पीजी को लिखना आना चाहिए। ऐसे अगर टेबल आपने बनवा लिया और एग्जाम में भी ये टेबल अच्छी तरह से लिखा तो एग्जामिनर आपको जरूर मार्क्स देगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये
सिद्धि स्थान के अलग अलग व्यापक जो है वमन के विरेचन के बस्ती के निरुआ बस्ती के नेत्र बस्ती नेत्र के वगैरह उन सब के आप इस प्रकार से टेबल बनवा के अर्थ समझ सकते हो। यापन बस्ती जो है उनके भी आप टेबल बनवा सकते हो। यापन बस्ती पर कई बार प्रश्न आता है और एग्जाम छोड़ के भी यापन बस्ती का प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा उपयोग है। यापन बस्ती की जो फलश्रुति है वो इतनी अलग अलग प्रकार की है और यापन बस्ती देने में पेशेंट को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो यापन करने वाला ही बस्ती है। निरूह से जिस प्रकार से बलहानी होती है वैसे यापन बस्ती से बलहानी नहीं होती, इसलिए यापन बस्ती अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस में उपयोग में लाने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ आप पूरी चरक संहिता का एक अध्ययन कैसे करना चाहिए और अंदर समझनी कैसी चाहिए इसके बारे में जितना हो सके बताने की कोशिश की है। ये विषय बहुत ही बड़ा है, ऐसे थोड़े में होने वाला नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, पीजी के स्टूडेंट्स और जो नए टीचर्स है वे नए टीचर्स ऐसे सबको ध्यान में रख के ये विषय समझाने की कोशिश की है। इसके आगे 2-4 स्लाइड्स है लेकिन अभी आप किसी की कैपेसिटी नहीं है इसका मुझे अंदाजा है, इसलिए अब हम यहाँ रुक जाते हैं। शीतल। हाँ। Thank you so much, ma'am, for valuable and informative lecture. तो यहाँ पे सेशन खत्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करती हूँ। और सेशन के लिए, वेबिनार के लिए जिन्होंने हमें सहकार्य किया उन सबका आभार मानती हूँ। और एक सूचना है सभी के लिए कि आपको फीडबैक का लिंक एक साथ हम नहीं भेज सकते, तो डेली हम 100 लोगों को इसका फीडबैक का लिंक भेजेंगे। उसके साथ इसका जो भी आज जो जिन लोगों ने मिस किया उन लोगों के लिए यूट्यूब का लिंक हम उस फीडबैक फॉर्म के साथ भेज देंगे। जब आप फीडबैक फॉर्म भर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So thank you for listening. There was technical issues. I am very sorry for that, and this